So, hello everyone. My name is Uzesh Chitulkar. I'm from Mumbai, Maharashtra. So, I have done AFOSOP online SML plus SSB batch in the month of August 2021. So, at that time, it was my first time when I cleared the FCAT examination. Before that, I had attempted SSB 2 times for NDA batch, and it was 2 times conference out. And after that, I joined AFOSOP. So, the major blunder that I see here is like, we have to go in the field of defense, and we know that it's life over there is going to be something that it would be complete challenge towards you, and your life is going to define life of thousands of others, and it's going to impact them. So if the impact is there, we have to make sure that we are an impactful person, and then and only then we can stand there firm on our decisions and make the impact on the people out here. So when it comes to impact or development of personality, I genuinely believe that it starts from ourselves. So that is what the approach of AFOSOP was, and I came to know about it from YouTube. Well, initially when I got through the videos, I found it really interesting. But the fact remains that AFOSOP will take your time and efforts. Because it's not like that you will see the videos and you will get done with it. It is about how much you implement those qualities in you. So I believe that NDA के time में even though I saw the videos, I knew कि शायद इसमें time जाएगा. And that was a wrong intent. So there was mistake in my intent. That I was thinking कि भाई कम time में भी हो जाएगा. Maybe I was made for it. क्योंकि NDA के time पे काफी मेहनत करी थी, written examinations clear करे थे. I used to feel कि अरे इतनी मेहनत करने के बाद मतलब अगर वहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो I should make it. तो let us take a normal coaching जहाँ से मुझे पता चले SSB का process क्या है जाऊँगा recommend होके आऊँगा. It was that simple for me. But when I went there, even though SSB process went really well for me, I enjoyed the process because I was complete fresh. And fresh atom में ये होता है कि दिमाग काफी खुला होता है, तो आप काफी चीजें सीखते हो वहाँ पे, काफी दोस्तों से मिलते हो. और NDA के बैच में अच्छी बात होती है रिपीटर काफी कम होते हैं और फ्रेश ही सबसे ज्यादा. तो I made a lot of friends. I enjoyed the process. I was expecting that I will get recommended, but somewhere I was high-headed कि भाई मेरा तो होना ही है. Because I had taken so much efforts for my written examination. मेरा score 480 है, मेरा क्यों नहीं होगा? ये thought. When this thought comes, I'm telling you, it is a complete dive in a huge trench that you are looking forward to. Because when this kind of approach comes, you never know, because this is a competitive examination where every inch of your efforts counts. So AFOSOP is telling you that only, कि ठीक है, you can be confident about yourself. So first gauge it, that how much you are, what are you, and then be confident. There is no wrong in being confident, but you should know that what exactly you have and what exactly you don't. So after that I got confidence out from there. I was like यार होना था हुआ नहीं, ये क्या बात है. ठीक है, I came back. I went to one of the coachings which again gave me the same idea. Again I was wrong in my intent. Here also, if I would have understood that I need to work on my personality, things might have worked. क्योंकि मेरे साथ के मेरे दोस्त एकेडमी में सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ के वो बच्चे अंदर जा रहे हैं पर मैं नहीं जा पा रहा. What is the issue? मेरा इंटेंट गलत. बेसिकली मेरा क्या था कि मेरे में है यार, मैं बस जाके अभी दिखाऊंगा, फिर सिलेक्ट हो गया, खत्म. वहाँ पे जाते ही देहरादून में I got screened in. I was really happy. कॉन्फ्रेंस हॉल एंड वेरी इजी कॉन्फ्रेंस, मतलब कुछ नहीं, मुझे पता था कॉन्फ्रेंस के पहले मेरा नहीं होगा, मेरा पूरा ग्रुप वॉश आउट हो गया. क्यों? क्योंकि इंटेंट ही गलत. तो जब ये सब होने के बाद आई इमीडिएटली फ्रॉम देहरादून कॉन्फ्रेंस आउट जस्ट वेंट टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, सॉ द चैटवुड ब्लॉक एंड डिसाइडेड कि भाई इसके बाद करना है तो सच में कुछ काम करके जाएंगे. अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एंटर करना है लाइक इंडियन आर्मी, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ सो दैट जब तुम उसमें एंटर करोगे यू एक्चुअली वर्क इट. क्योंकि अंदर जाने के बाद इफ यू आर नॉट दैट पर्सनालिटी, यू वुड बी लायबिलिटी ऑन द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज यू विल कर्स योरसेल्फ. क्योंकि अंदर जाने के बाद लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी ऑफ कोर्स. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, इसके बाद करेंगे, खुद पर काम करेंगे. So immediately after that I started preparing for my written examinations of CDS and FCAT. I knew कि जो गलती NDA में हुई थी कि जिसमें मैंने written examination को ठीक से prepare नहीं किया था, वो इस बार नहीं करूँगा. I started preparing for my CDS, FCAT and really worked hard and cleared both the examinations in my first attempt. पहले FCAT हुई थी, FCAT का रिजल्ट आते ही the first thing I did was इस बार चटकी नहीं मारना. This time intent was correct. I joined AFOSOP. AFOSOP में आने के बाद I understood कि भाई अभी तो बहुत बड़ा रास्ता बाकी है, पर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एटलीस्ट आई शुड बी गुड इनफ सो दैट आई कैन मेक द ट्रेनिंग सेल. ऐसा पर्सन बनो कि यार अंदर जाने के बाद जैसे सर बोले कि उनको लोहा चाहिए,
वो लोहे को पिघला के बंदूक बना देंगे, बट दे वांट दैट लोहा। तो अगर तुम लकड़ी हो कुछ और तो टूट जाओगे। ट्रेनिंग में टूटने वाले काफी लोग मिलते हैं और निकल जाते हैं बाहर। सो दैट वाज द पॉइंट, ठीक है यार तुम पे काम करना है, इंप्रूव करना है। इसमें क्या इंप्रूव किया, मैंने क्या इंप्रूव किया ऐसा? आई अंडरस्टूड कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत वीक है, डिसिप्लिन के मामले में एकदम पत्थर हूं। तो अगर ये सिचुएशन है तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट। एवरी डे देयर इज अ मोबाइल पे ऐप आता है नोट्स, उस पे एक चेकलिस्ट बनती है। एवरी डे आई यूज्ड टू मेक माय चेकलिस्ट, काम करने लग जाता था। आई डोंट नो वेदर यू नो द कांसेप्ट ऑफ काम वाली बाइक। इट इज वेरी एफिशिएंट कांसेप्ट बिकॉज आई अंडरस्टूड कि सब जब मैं कुछ ऐसा करने जाता हूँ व्हिच इज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, आई माइसेल्फ टेल माइसेल्फ कि नहीं होगा ये, कहां से होने वाला है, छोड़ो ना बाद में कर लेंगे। आवर माइंड टेल्स टू पोस्टपोन इट। पर जब काम वाले भाई का कांसेप्ट समझ में आया, मैं उसी टाइम पे बोलता था कि नहीं यार यही करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लेटली आई डिड द साइक्लिंग फॉर 100 किलोमीटर्स साइकिलिंग। ऑप्शन थे 25, 15 किलोमीटर्स, 25, 50 किलोमीटर्स, 75 किलोमीटर्स। बट देयर आई चैलेंज माय सेल्फ कि यार ठीक है 25 तो हर कोई करेगा, देखते हैं ना 100 किलोमीटर्स। स्टिल माय माइंड वाज लाइक किया है क्या कभी? किया है कभी? तो किया नहीं, कहां से करोगे? 100 किलोमीटर पता है कितना होता है? माय माइंड वाज टेलिंग मी दैट। मैं बोला नहीं यार ट्राई क्या ही हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा, ट्राई तो करते हैं, लेट अस गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आई टोल्ड माय काम वाली बाइक ये होगा, करेंगे। I took the registration for 100 kilometers. I kept preparing myself on the weekends. 50 kilometers, 60 kilometers I used to ride. And that time I understood कि यार ये पूरा माइंड गेम है। मेरी बॉडी कैसी भी हो क्या भी हो, माइंड गेम है। अगर माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, that's what the AFO is all about. Self management leadership. If you can, as sir say, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. तो inside world क्या है? यही है कि यार क्या मैं खुद को जो चैलेंज दे रहा हूँ क्या मैं फुलफिल कर रहा हूँ? If I can do it, I can do anything. So yes, like this, AFOSUP started making difference in my mind itself, the wiring of my mind. कि okay, ये चीज सामने रखी है, पहले जाके मैं कोई को ले 100 किलोमीटर पगला गए हो क्या? कहाँ से कर रहे हो? सिंपली और एक एग्जांपल देना हो तो जिम में मैं जिमिंग करता हूँ, पता है मुझे कि यार मैंने कभी 50-60 पाउंड्स तक वेट नहीं उठाया, उसके नीचे ही मैं डंबल मतलब रोज कर रहा हूँ, डंबल प्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मुझे खुद को पुश करना है तो डेफिनेटली आई नीड टू गो फॉर दैट 60 पाउंड्स का डंबल जो सबसे बड़ा है जिम में। तो अगर मैं वो उठाऊंगा तो मैं बोलूंगा चलो ट्रेनर को बुला लेते हैं, इन केस गिर गया तो क्या, ये हो गया तो क्या। आई अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट इज ऑलवेज देयर, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर आप उस टाइम पे आपके माइंड को ओवरकम कर जाओगे तो हो जाता है। एंड आई नाउ आई डू इट। ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिसमें माइंड में काम करते करते काम हो गया। अभी आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक इशू आने लग गया था मेरे कॉलेज के साथ। एक्चुअली कोविड-19 के चक्कर में आई एम फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो उस चक्कर में मुझे एसएसबी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे और उसकी वजह से पोस्टपोनमेंट में इट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मुझे मेरे एसएसबीज वेस्ट हो रहे थे। माय 2 FCATs 2 CDS वर लाइक वेन, यार मैं जा ही नहीं पाया। एक बार गया डॉक्यूमेंट आउट के वापस आ गया था तरह से। बट दिस बिकेम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई न्यू देयर आर लॉट ऑफ लैक्यूनास इन माय पर्सनालिटी एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम। आई स्टार्टेड मैनेजिंग माय डे, आई स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ वो कंप्लीट कर रहा हूँ। In the meanwhile, I started preparing for civil services examination because I knew कि मैं अगर खुद को खाली रखूंगा तो प्रॉब्लम है, नॉलेज को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा और सीरियस एग्जामिनेशन सच अ वे दैट इट इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल डे बाय डे। आई न्यू कि इसमें टिकना है तो फाइट लगानी पड़ेगी, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी, खुद को चैलेंज किया। अभी ये भी सिविल सर्विसेज, अ बॉय हु हैड नॉट क्लियर 3 times NDA, 65.23% in 12th standard, 67.13% in graduation. Nobody could believe that I can, shift in civil service examination domain. But I challenged myself in that कि ठीक है यार करते हैं, क्या ही होगा, मुश्किल क्या ही होगा, हार जाएंगे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, पर पुश करूंगा माइंड को। तो ये करते हुए सीडीएस के सारे एग्जाम क्लियर करे, हर सीडीएस में 150 प्लस स्कोर आया, which is more than enough for me even to clear the AFA cutoff. But I knew कि IIM में ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होने वाला है। जब एसएसबी गया इस बार, I was really confident and more than that I was crystal clear कि मैं I'm not going to pretend anymore, क्योंकि डेस्परेशन बहुत बुरी चीज होती है और ये एनडीए के सेकंड अटेम्प्ट में ही पता चल गया था। सर ने एक बताया था छटपट आवर्ट में मत रहो, छटपट आवर्ट में लोगे तो खत्म हो जाओगे कि करना ही है, यही होगा। मतलब आप छटपट आवर्ट ठीक है, मतलब हैविंग कंप्लीट पैशन टुवर्ड्स इट इज वन थिंग एंड हैविंग डेस्परेशन इज कंप्लीटली अनदर थिंग। डेस्परेशन के चक्कर में वी ट्राई टू प्रिटेंड समथिंग दैट वी आर नॉट, वी ट्राई टू बी लाइक समवन, बी लाइक दिस ऑफिसर, बी लाइक दैट ऑफिसर, be like someone you are not. And I remember
Many people स्क्रीनिंग के पहले ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि यार मैं तो रिकमेंड होने आ रहा हूँ, ये तो यार जस्ट इन प्रिटेंशन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, स्क्रीन आउट हो जाता है। प्रिटेंशन में आप देखोगे ग्रुप डिस्कशन में काफी बंदे ऐसे प्रिटेंड करेंगे एज इफ मतलब कमांड देने आए, लाइक समथिंग लाइक दैट, इवन इन कमांडर्स ही मस्ट हैव नोन दैट स्टोरीज टू ट्राई टू ट्रेंड समथिंग। मैं इस बार एकदम इजी था सर, मतलब कुछ नहीं, जाऊंगा खुद की पर्सनालिटी शोकेस करूंगा, हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो और बढ़िया कुछ करूंगा। क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव यार ग्रेजुएशन एंट्री, जब आप ग्रेजुएशन एंट्री तक आते हो, एनडीए के एंट्री तक ना पैशन वेरी गुड, यू हैव पैशन, यू हैव कंप्लीट डिवोशन एंड यू कैन मेक, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। ग्रेजुएशन एंट्री तक आने तक यू आर 21-22 ऑलरेडी एंड स्टिल यू आर ऑन द डिपेंडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट आई बिलीव कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हैं, यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस अलाइंड एंड योर बैकअप ऑप्शन प्रिपेयर्ड। अगर बैकअप प्रिपेयर्ड नहीं है, तुम हमेशा डिस्कशन में रहोगे, हमेशा छटपटाहट में रहोगे, हमेशा गलती करेंगे। अभी एएफएसओपी का ये भी चक्कर है कि आपको वो माइंड से क्लियर कर देता है कि क्लियर करना है, नॉट बिकॉज टू शोकेस समथिंग, बिकॉज यू एक्चुअली स्टूड बाय, हाँ तुम वहां पे स्टैंड करते हो, तुम क्लियर कर जाओ, उस पर छटपटाहट की जरूरत नहीं है। इसलिए बैकअप प्रिपेयर किया, एमएसटी लॉ सीईटी दी, लॉ वाज माय सेकंड ऑप्शन, ये नहीं हुआ तो लॉ करूंगा एंड अच्छे से आई विल गो अबाउट इट। इसकी वजह से माइंड से क्लियर था कि ठीक है जो है शोकेस करूंगा, असलियत सिलेक्ट हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ और भी बढ़िया। आयो ने मुझे यही सवाल पूछा था कि पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या गलती हुई। आई टोल्ड हिम दैट सर आई वाज डूइंग मिस्टेक इन माय, आई थॉट दैट माय पर्सनालिटी इज गुड इनफ एंड आई जस्ट वेंट अबाउट टू नो द प्रोसेस एंड आई वेंट अहेड। एंड अनदर थिंग वाज कि जब सेकंड अटेम्प्ट में मैं डेस्परेशन बहुत तक है, लास्ट अटेम्प्ट है एंड कुछ भी करके करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा। दिस टाइम सर आई एम इन द अप्रोच कि इफ यू क्लियर मी देन आई विल बी रियली हैप्पी, आई एम वेरी श्योर आई एम हियर टू क्लियर इट। And if this does not happen, sir, I will do something with my life very well. This was something must have changed the course of the complete interview, because इसके बाद he came to know कि यार यहाँ पे मैं even तो आया हूँ with the complete force, UPSC exam CDS clear करके आया हूँ, and have the understanding कि life is not always something that you expect it to be. It has to be something that you give the shape to, but definitely you have to be aligned with the practicality and pragmatic approach. तो यस इट वर्कड आउट एंड सर एफएसओपी में जो एसएसबी में थॉट्स दिए थे साइकोलॉजी के बारे में कि आप बड़े बड़े थॉट्स लिख रहे हो, डीएम ने ये कर दिया वो कर दिया एंड दिस कि पता नहीं गांव का नक्शा ही बदल गया, नथिंग लाइक दैट। इस बार मैंने मेरे साइक पूरा पीआईक्यू पे बेस्ड रखा था। अगर कुछ भी मुझे सिचुएशन दिख रही है तो आई यूज्ड टू थिंक कि इस सिचुएशन में अगर मैं होता तो व्हाट वुड आई हैव डन, इतने सिंपली मैंने लिख दिया उसको, नथिंग एल्स। एसडी 1.5 पेज, सारे बोलते हैं कि नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल मत लिखना आपने, कुछ बिल्कुल नहीं, मैंने लिख के आया इस बार, पक्का लिख के आया कि हाँ मेरा माइंड बहुत बार डिस्टर्ब रहता है, मेरे मार्शल आर्ट के टीचर बोलते हैं यू शुड डू मेडिटेशन, लिख दिया। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि यू आर लाइक एक ही पकड़ के बैठ जाता है और बाकी चीजें फिर डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, लिख दिया। अभी ये लिखने के बाद आयो में भी यही बोल के आया, बिकॉज दिस इज द फैक्ट, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, हाँ यही है, मेरे नेगेटिव्स है, उस पर काम चल रहा है, होगा धीरे धीरे। अभी ऐसा तो नहीं है कि वी आर लाइक सुपरमैन, होगा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसमें, वो कर लेंगे, पर बता दो, अप्रोच तो सीधी रखो। तो आई अंडरस्टूड कि ये सब सच्चाई लिखने के बाद इन द इंटरव्यू इट वेंट वेल, इट टुक ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes फॉर मी, एंड इंटरव्यूअर वाज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर गया ही वाज इन सम एग्रेसिव मोड, क्योंकि जाते ही वाज लाइक कि यार बीच में वो हिंदी में शिफ्ट कर जाते थे, मतलब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन चालू हो जाता है, मुझे कुछ नहीं किया है यार, मतलब तुम क्या, मतलब देखो यार 65.23% इक्वल स्टैंडर्ड, यू हैड 92%, तो सच बता तूने कुछ चक्कर किया है 10+2 में, कुछ तो किया है, तेरे मार्क्स कम हुए। आई टोल्ड हिम कि सर हाँ मैंने मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में काफी पार्टिसिपेट किया था, और मैं एकदम अभी ये मैं बताता हूँ 100% लोग यही बोलेंगे मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, एक्स्ट्रा करिकुलर था। मैंने इस बार ये भी पॉइंट आउट किया, जैसे मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, आई यूज्ड टू अवॉइड करता था, प्रॉब्लम से भाग रहा था, प्रॉब्लम से भाग के काम होगा नहीं। वो मैं समझ गया 11th के बाद ही समझ गया था कि यार ये कुछ चक्कर हो गया, अभी 12th में काम करना पड़ेगा, वो किया मैंने, 12th में उतना परसेंट नहीं आ पाया सर, पर ये गिनती थी, अभी उस पर काम करते हैं। इस बार मैंने फिजिक्स, फिर उनका यही सवाल था कि तुमने सब्जेक्ट ये क्यों उठाया, फिर यार ये भी था कि सब्जेक्ट ये क्यों उठाए, तो मैंने डेफिनेटली बता दिया कि फिजिक्स मैथ्स इसलिए उठाया क्योंकि मेरे को एनडीए के लिए चाहिए था। तो क्लियरली एएफएसओपी हैज गिवन शेप टू माय पर्सनालिटी इन अ वे दैट इट इज नॉट जस्ट फॉर एसएसबी बट इट्स फॉर लाइफ, कि ठीक है एसएसबी तो इट इज एज हाँ ओवर देयर व्हेन ही आस्क्ड मी कि हैव यू टेकन कोचिंग फ्रॉम समवेयर, आई टोल्ड यस सर,
Not this time, but previously I had taken from AFSOP, Lieutenant Colonel Ganesh Babu. Okay, what he told you. So I told him that he told me that SSB is subset of life, and you should work on your life so that SSB will be better. What have you done? तो मैं बताया कि 4-5 चीजें करके आया हूँ सर. अच्छा ये बताया, गुड. तो इस बार मैंने बताया फिजिकल फिटनेस पे काम किया, पिछली बार नहीं किया. तो हाँ इस बार कितने आयो करेगा? तो सर 10 से ज्यादा करूँगा. He was like 10 से ज्यादा करेगा? अच्छा रस्सा चल लेता रस्सा. हाँ सर रस्सा भी चढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा रस्सा भी चढ़ लेगा. देगा मैं क्रॉस चेक करूँगा कॉन्फ्रेंस में. He wanted to check my confidence कि सच में कर लेगा. हाँ सर नो प्रॉब्लम. तो क्या हुआ कॉन्फ्रेंस के पहले मेरे को पता था कि मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 9 ही किए. अभी दिक्कत ये हो गई थी मेरे बैलेंसिंग में गिर जा रहा था बार. और इवन इन GOR यही हुआ था, बैलेंसिंग में ऊपर से जाने के बाद गिर गया था. उस चक्कर में मेरे ग्रुप को 3 सेकंड की पेनल्टी पड़ी. अभी ये भी बात मुझे पता थी कि एनडीए के टाइम पे ये गलती थी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की हर चीज टुवर्ड्स मी. और सर ने मुझे एसओपी के टाइम पे ही बताया था कि तेरी स्टोरी साइकोलॉजी लाइमलाइट सीकर की दिखती है. हर बार यू वांट टू बी इन द सेंटर ऑफ द शो. ये नहीं चलेगा फौज में. I knew this at this time. I was in my clear mind कि यार ग्रुप के साथ जाना, जो ग्रुप बोलता है उसके साथ करना. I am the part of group, I am not the group. तो ये करते हुए मैंने कॉन्फ्रेंस भी ये बोला था, one thing that you would like to improve in your performance. Yes, the GTO में मेरे वजह से मेरे ग्रुप को 3 सेकंड की पेनल्टी पड़ी थी GOR में, and that is the one thing that I would like to improve. So this might have helped me कि यार एक group approach चला. So I would definitely recommend all of you that SSB is subset of life. If you in your life if you do well, then definitely SSB will work out. And let us consider SSB does not work out. It's maybe not in your luck. You will definitely do well in your overall life. Thank you so much.